Hello everyone, I am Vipin Kumar and I welcome you all to this lecture series of thermodynamics. The topic that we are going to see today is thermodynamic equilibrium. Now problem क्या है कि there are a lot of students who are confused between thermodynamic equilibrium and thermal equilibrium. तो आपको समझना ये है कि these are two different things. These are two different concepts. Okay, and you need to make a distinction between these two. Okay, so this is what we are going to discuss today. What is thermodynamic equilibrium, what is thermal equilibrium, and how are they related? Okay, now before we move ahead I would like to ask you, अगर आप गेट 2024-25 दे रहे हैं, अगर आप PSUs you want to attempt, ESC आप दे रहे हैं next year, or if you're also attempting SSC JE or AE, and if you have any doubt what should be your strategy for preparation, how should you cover all the subjects, what subjects you should prioritize, okay, how to manage your time, so you can directly connect with me, you can ask your doubts, you can connect with me by scanning this QR code, and you can join my Telegram group, the learning curve. Okay, chalo, let's move ahead. Now before we move ahead, let me give you a brief introduction about myself. I have around 5+ years of teaching experience. I have done my MTech from IIT Kharagpur. I have done my MSc from Politecnico di Milano. 3.5 years of industry as well as research experience, few research publications, and my area of expertise is basic and applied thermodynamics and heat transfer. Okay, so should we start the session for today? Let's go ahead. Now, what is thermodynamic equilibrium? तो आपको समझना ये है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक स्टेट है. ओके, सो अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. वो कंडीशन सिस्टम की, जब सिस्टम की किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, चलो मान लो, कैसे समझना है इसे. लेट अस से that we have a system. This is my system. और ये सिस्टम कोई एनर्जी ले रहा है सराउंडिंग से, इट इज टेकिंग सम एनर्जी. तो ये किसी एक हायर प्रेशर टेम्परेचर पे होगा, राइट? तो लेट अस से इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1. और मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि P1 इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक and T1 is also greater than T atmosphere. ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन एज्यूम. अब थोड़ी देर बाद आई हैव स्टॉप्ड गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम. तो नाउ आफ्टर सम टाइम आई एम नॉट गिविंग दिस एनर्जी, आई एम नॉट गिविंग दिस एनर्जी. तो अब क्या होगा? इफ यू लीव दिस सिस्टम बाय इटसेल्फ, तो इसका प्रेशर जो है थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा. इट्स प्रेशर विल स्टार्ट टू चेंज, and eventually after 1 hour, after 2 hours, after 10 hours, whatever time it is, it will reach to P atmosphere, T atmosphere, and some volume, let us say V final, right? उसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. Once it is in equilibrium with the surrounding, उसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स इस कंडीशन पे जब ये सिस्टम आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के अंदर देयर इज नो चेंज इन द सिस्टम आफ्टर दैट. ठीक है, अब ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि इट इज एट द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. बेसिकली इफ योर सिस्टम इज मेंटेन्ड एट अ पर्टिकुलर कंडीशंस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप ये कह सकते हो कि योर सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यानी कि उस ड्यूरेशन के दौरान, उस ड्यूरेशन के इंटरवल में देयर इज नो चेंज इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अब बात यह है कि सिर्फ एक कंडीशन, एक या दो प्रॉपर्टी नहीं, देयर आर 3 कंडीशंस दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, then only you can call that the system is in thermodynamic equilibrium. क्या कंडीशन होती है वो? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ये बात समझ लो कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम दे आर नॉट सेम.
When these all three conditions are satisfied, then you will say that the system is in thermodynamic equilibrium. ये बात समझ में आ गई? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब एक एक करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है ये. पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? भाई देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन द सिस्टम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो कि ये आपका एक सिस्टम है और आपका बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है और इसके अंदर का एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो 5 एटमॉस्फेयर है. अब क्योंकि प्रेशर ज्यादा है अंदर, जब प्रेशर अंदर ज्यादा है तो इट इज गोइंग टू इंसर्ट सम, देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स एट द बाउंड्री, राइट. ये बाउंड्री को बाहर की तरफ पुश कर रहा है और एज लॉन्ग एज देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स द सिस्टम इज नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. द सिस्टम इज नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अब मान लीजिए कि कुछ देर बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, इस पर्टिकुलर सिस्टम का प्रेशर जो है आफ्टर, लेट अस से आफ्टर 5 आवर्स, इसका प्रेशर कम हो गया है एंड नाउ इट इज P1 ऑल्सो 1 एटमोस्फियर और आउटसाइड तो 1 एटमोस्फियर है ही. तो अब इस बाउंड्री पे देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्चुअली. जितना फोर्स अंदर से लग रहा है उतना ही बाहर से लग रहा है, जितना अंदर से उतना ही बाहर से. सो दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. द क्राइटेरिया फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज इक्वालिटी ऑफ प्रेशर. ठीक है. अगर बाउंड्री पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में there is no unbalanced force, then you can call that the system is in mechanical equilibrium. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. सो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जब देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, और कंपोनेंट्स. ठीक है. जैसे कि पहले पढ़ लेते हैं. नो केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अदर पार्ट. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर ये सिस्टम है, अब यहां पे मान लीजिए देर आर टू मॉलिक्यूल, देर आर टू मिक्सचर्स हियर, x1 x एंड y लेटस से. ठीक है. तो अगर इस एरिया में x की कॉन्सेंट्रेशन 90% है तो इस एरिया में भी 90% ही होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ये कम होगी तो देयर विल बी द मैटर फ्लो दैट विल हैपन फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया. तो कॉन्सेंट्रेशन जो है x की वो बराबर होनी चाहिए. सिमिलरली y की कॉन्सेंट्रेशन भी, तो यहाँ पे अगर y जो है वो 10% है तो यहाँ भी 10% ही होना चाहिए. तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर होनी चाहिए. दैट इज हाउ द मैटर विल नॉट फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर. ठीक है. तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए. देन ओनली यू कैन से दैट द सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज. केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी. केमिकल कॉम्पोजिशन कब चेंज होती है? जब आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपका x प्लस वाई विल कन्वर्ट इनटू जेड. ठीक है. कुछ पोर्शन x का लेगा, कुछ पोर्शन y का लेगा और z बना देगा और मे बी कुछ x डैश और y डैश बच जाएगा. लेकिन हो क्या रहा है, एक नया कंपोनेंट आ गया तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई. तो दैट मीन्स अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो द सिस्टम इज नॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम. तो कंडीशन क्या है? एक तो नो केमिकल रिएक्शन, ये वाली कंडीशन. नो केमिकल रिएक्शन मींस ये वाली कंडीशन. और क्या है? नो फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं होना चाहिए.
तभी आप कहोगे ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, लास्ट। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? व्हेन द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड by a diathermic wall and there is no spontaneous change in the property of system। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम ये है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ x1, टेम्परेचर मान लो x1, ऐसा मान लेते हैं हम, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, प्रॉपर्टी है कुछ प्रेशर P1 और T1। एक आपके पास दूसरा सिस्टम और है, वन मोर सिस्टम यू हैव, इसकी प्रॉपर्टी है P2 और T2। Now when I separate these two systems by a diathermic wall, अब मैंने एक डायाथर्मिक वॉल से इन्हें, सो डायाथर्मिक वॉल क्या होती है? इट कैन अलाउ हीट ट्रांसफर। डायाथर्मिक बाउंड्री जो होती है, इट कैन अलाउ हीट ट्रांसफर, एग्जांपल इट कैन अलाउ हीट ट्रांसफर। ओके, तो हीट ट्रांसफर कैन हैपन इफ देर इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपके पास दो सिस्टम्स हैं, एक P1 T1 पे है, एक P2 T2 पे है, दोनों को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है डायथर्मिक वॉल से, उसके बाद भी देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, तो फिर आप कह दोगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब वो कब होगा? मान लीजिए तब ऐसा होगा कि दो सिस्टम्स को आप लेके आओगे और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कब ऐसा हो सकता है? जब उसका टेम्परेचर ऑलरेडी सेम है। अगर मान लो ऊपर वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे वाले का कम है, तो हीट ट्रांसफर विल हैपन लाइक दिस और वाइस वर्सा। लेकिन जब आप दो बॉडीज को बराबर कांटेक्ट में ला रहे हो, तो उनका टेम्परेचर कब चेंज नहीं होगा? जब उनका टेम्परेचर ऑलरेडी सेम है, राइट? तो दैट मीन्स दैट there is no where these bodies will come in thermal equilibrium only when temperature will be same। ठीक है, so in the state of thermal equilibrium the temperature of the system is uniform। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा कब होगा? जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कह सकते हो थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो फिर अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? प्रेशर की इक्वालिटी। ये क्या है? केमिकल पोटेंशियल की इक्वालिटी। और ये क्या है? टेम्परेचर की इक्वालिटी। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, देन ओनली यू कैन से दैट योर सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आई थिंक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो है, दैट शुड बी कंप्लीटली क्लियर। देयर शुड बी नो डाउट about what is thermodynamic equilibrium, what are the conditions that need to be satisfied to say that the system is in thermodynamic equilibrium। ठीक है, जब आपकी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ओनली देन यू कैन से दैट योर सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो, तो वी आर गोइंग टू सी ईच अदर इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। Keep praying, be motivated. I'm going to see you again. Bye bye.